Hello students, myself Neha Yadav, and today I will be discussing the topics of module 2 of business organization. As we have discussed in the previous presentations, what were the various forms regarding the forms of business ownership, where we have discussed about various forms of business ownership, that was sole proprietorship and joint Hindu family, and and we were discussing about the partnerships. So in partnership we have discussed that according to Partnership Act of 1932, partnership means the relationship between persons who have agreed to share the profit and loss of the business, carried on by all or any one partner acting for all. So in the previous presentations we have discussed what were the various features of sole proprietorship, where only a single individual can start a business and he does not have to depend on the other partner to start a sole proprietorship business. And then we have studied about the joint Hindu family, where a Hindu family can start a business of joint Hindu family, and where the head is known as Karta, and he is responsible for the management of the whole business. So that was about the joint Hindu family. Then we have discussed about the various merits and demerits of different forms of business, and then we were discussing about the partnership. And in partnership we have discussed about the various features of partnership, that start a partnership, about the formation and registration and all, and those about the liability of the partners that we have discussed. And today we will discuss what are the various type of partnerships. So in this slide we will study about the types of partnership. So moving on with the first slide, here I have discussed about the types of partnership. So partnership basically they can be classified on the basis of two factors, that is duration and liability. ठीक है, यहाँ पे हम जो भी टाइप्स पढ़ेंगे पार्टनरशिप के वो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पर पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी. ठीक है, तो ड्यूरेशन के बेसिस पे there are two partnership can be classified into two types, that is partnership at will and particular partner. Duration मतलब length, कितने टाइम के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं. तो ड्यूरेशन फैक्टर के बेसिस पे पार्टनरशिप टू टाइप्स की होती है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. फिर नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी के बेसिस से मतलब सपोज अगर इफ इन केस कुछ भी मनी बोरो कर रखा है तो उसको फर्दर रीपेमेंट के लिए ये पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है कि वो जितना भी अमाउंट उन्होंने ड्यू है जो उनको देना है, दैट फॉर दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल. दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ ड्यू if they have taken for business purpose. So liability के basis पे partnership it is of two types, that is partnership with limited liability and the other one is partnership with unlimited liability. ठीक है, so liability के basis पे partnership is of two types, liability partnership with limited and partnership with unlimited liability. ठीक है, तो now we will discuss these types in detail. First one was classification on the basis of duration. Now on the basis of duration, partnership is of two types, partnership at will and particular partnership. Partnership at will means कि this type will means according to the desire of the partners. The partnership will continue, ठीक है, long as the partners want to continue, they can continue their business, and if they don't want then they can terminate also. So partnership at will means this type of partnership exists at the will of the partners. ठीक है, ये पार्टनर्स के विल पे ही डिपेंड करता है कि वो कब तक कंटिन्यू करना चाहते हैं. इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द partners want and is terminated when any partner gives a notice of withdrawal from the partnership to the firm. ठीक है, and it will continue as long as the partnership want, and if any partner does not want to continue then he can terminate from the firm, ठीक है, by giving a notice of withdrawal from partnership to the firm. ठीक है, तो जो भी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उनको वो एक नोटिस ऑफ विड्रॉल प्रोवाइड करके टर्मिनेट कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. नेक्स्ट वन वाज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ठीक है, पर्टिकुलर मींस दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यूज टिल ओनली दैट टाइम पीरियड जब तक एक स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है. मतलब जिस भी प्रोजेक्ट पे को रन करने के लिए बिजनेस स्टार्टअप हुआ है, वो जब उस प्रोजेक्ट का एम ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा तो वो पार्टनरशिप जो है क्लोज हो जाएगी, इट विल गेट डिसॉल्व.
So this type of partnership is called particular. Particular means for the accomplishment of a particular project or venture. Say for example कोई project है construction of building या construction of any dam or any activity, any other activity, ठीक है, to be carried on for a specified time duration or time period. It is called particular partnership. It dissolves automatically when the purpose for which it was formed is fulfilled. ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो तब डिसॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा जब हमारा जो पर्पस है प्रोजेक्ट को रन करने का, अगर वो हमारा फुलफिल हो जाएगा, देन द पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, और व्हेन दैट टाइम ड्यूरेशन विल एक्सपायर, कि जितने टाइम के लिए हमने प्रोजेक्ट पे काम करना था वो जब एक्सपायर हो जाएगा तो पार्टनरशिप विल क्लोज टू एन एंड. सो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. एट विल मीन्स इट विल कंटिन्यू till the will of the partners, and particular means till the accomplishment of a particular project or venture for which that for whatever time period the project is to be completed. ठीक है. The next classification was on the basis of liability. ठीक है, liability के basis पे general partnership है, limited partnership है. ठीक है, तो पहला है जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप क्या होता है कि यहाँ पे द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड ज्वाइंट. ठीक है, जनरल में जो भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं पार्टनरशिप में उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कि सपोज अगर बिजनेस एसेट सोल्ड ऑफ करने के बाद भी लाइबिलिटी फुलफिल नहीं हुई है, पूरा पेमेंट नहीं हो पाया है, तो उसके लिए पार्टनर्स जो है दे आर responsible to pay the debt from their personal assets also. So in general partnership, the liability of the partner is unlimited and joint, and the partner enjoy the right to participate in the management of the firm, and their acts are binding on each other as well as on the firm. And they also have the right, जो भी firm का management है उसमें participate कर सकते हैं. And registration of the firm is optional for the partnership. ठीक है, और फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, और अगर नहीं रजिस्टर करवाया तो उस केसेस में भी हमने पढ़ा है कि क्या होता है. तो एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाय द डेथ, lunacy, insolvency or retirement of the partner. And if any partner get insolvent or due to his death, then it will lead to closure of the partnership business. So the existence of the partner will be affected by the death of any partner. So this type of called general partnership, मतलब जहाँ पे जो liabilities होती हैं partners की, that is unlimited and they are responsible for the management of the firm also. And second one is limited partnership. In limited partnership, the liability of at least one partner is unlimited, whereas the rest may have limited liability. Limited partnership में क्या होता है कि कम से कम at least एक partner की liability unlimited होती है, और जो बाकी पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कितने तक, जितना उनका बिजनेस में शेयर है. सपोज अगर 100% में 20% पार्टनर ए का शेयर है और पार्टनर बी का 10% है, तो ए और बी का जो लाइबिलिटी होगी वो जितना उनका शेयर है उतने के लिए वो लाइबल होंगे फ्यूचर में अगर कोई भी ड्यू होता है अमाउंट, और जो एक पार्टनर है कम से कम उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. ठीक है, so such a partnership does not get terminated with the death, lunacy or insolvency of the limited partner. ठीक है, तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप होती है वो टर्मिनेट नहीं होती है कि सपोज इफ इन केस अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप विल नॉट बी टर्मिनेटेड. एंड द लिमिटेड पार्टनर्स डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो जो भी पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी है दे डोंट हैव द राइट टू एंजॉय द मैनेजमेंट एक्टिविटीज. ठीक है, एंड देयर एक्ट्स डू नॉट बाइंड द फर्म और अदर पार्टनर्स, एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस of such firm is compulsory. और limited partnership की जो partnership firm होती है that should be registered because it is compulsory for them to get themselves registered with the registrar of the firm. Then next one is partnership deed. Here we will study about the partnership deed. Now for starting the partnership business of firm, we should enter into being a partner, the partner should enter into a partnership deed. So partnership deed is a kind of agreement that they have to enter, where the terms and conditions of the of running the business regarding share in profit and losses, all the instructions are being provided there. So partnership deed is a voluntary association of people who come together for achieving some common objectives, and in order to enter into partnership, a clear agreement with respect to terms, conditions and all the aspects concerning the partner is essential, so that there is no misunderstanding later among the partners. So to avoid any kind of misunderstanding among the partners in future time period, all the terms and conditions and all the rules and regulations are being written in that agreement, that is known as partnership agreement. And such kind of agreement can be oral also, and it can be in written form also. Even though it is not essential to have a written agreement, it is advisable to have a written agreement as it constitutes an evidence of the conditions. Okay, so
ये एडवाइजेबल होता है कि जो एग्रीमेंट रिटन ही होना चाहिए, क्योंकि सो दैट कि एवरीवन विल हैव एन एविडेंस कि व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस. Now, the written agreement which specifies the terms and conditions that govern the partnership is called partnership deed. So, deed is a kind of agreement, written agreement, where the terms and conditions related to the partnership form and regarding the partner share, all terms, all the contents are being provided there. So, the deed generally includes the following aspects. So, these are the contents of deed. Okay, what are the things that are being written there? So, first one is regarding the name of the firm. Then name of the firm is nature of the business and location of the business, duration of the business, investment made by each partner means capital, then distribution of profit and losses, then duties and obligations of the partners, salaries and withdrawals of the partners, terms governing admission, retirement and expulsion of partners, interest on capital, and interest on drawings, then procedure for dissolution of the firm and preparation of accounts and their auditing and method of solving disputes. So these are the aspects which are being written in deed. So first one is name of the firm, where the name of business, location, and regarding the partners, share, losses, interest on capital, all these things are written there. Second one is registration. Then registration of a firm means entering of the firm's name along with the relevant prescribed particulars in the register of firms kept with the registrar of firm. So it provides conclusive proof of the existence of firm. Registration means you have to get your firm registered with the registrar of the firm so that you can have a proof कि your firm is being existed. तो उसके लिए हमें अपने फर्म्स का नेम और अलॉन्ग विद द जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें रजिस्टर ऑफ फर्म्स को सबमिट करने होते हैं. So it is option for a firm to get registered. In case the firm does not get registers, it is deprived of many benefits. तो ये ऑप्शनल होता है कि फर्म्स को रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है, बट अगर आप नहीं कराते हैं तो उस केस में वेरियस बेनिफिट्स होते हैं जो नहीं मिलते हैं. Now, consequences of non-registration of a firm. So, if your firm is not registered, then what are the drawbacks or what are the consequences that you will not get there? Are first one is a partner of an unregistered firm cannot file a suit against the firm or other partners. तो अगर कोई भी पार्टनर है जिसका फर्म अनरजिस्टर्ड है, सो वो किसी भी तरीके का सूट या केस फाइल नहीं कर सकते किसी भी अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट, या कोई भी फर्म है. And the firm cannot file a suit against third parties also. कोई third party है तो उसके लिए भी कोई केस फाइल सूट नहीं हो सकता है. And the firm cannot file a case against the partners. ठीक है, किसी कोई भी अदर पार्टनर है तो उसके अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है और किसी भी फर्म के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता है. तो इसीलिए एडवाइजेबल है तो कि हमें फर्म को रजिस्टर कराना है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, the partners may get the firm registered with the registrar of firm of the state in which the firm is situated, and the registration can be at the time of formation or at any time during its existence. Now, अब अगर हमें प्रोसीजर क्या होता है कि अगर हमें फर्म को रजिस्टर्ड करवाना है तो क्या क्या चीज़ें हमें सबमिट करनी होगी रजिस्ट्रार को. तो रजिस्ट्रार हर एक स्टेट में होता है जहाँ पे फर्म सिचुएटेड है. तो पहला है कि जो भी एप्लीकेशन है तो उसको हमें सबमिट करनी होती है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रजिस्ट्रार को. देन द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स. ठीक है, और एप्लीकेशन जो हम सबमिट करते हैं उसमें ये डिटेल्स होती हैं: नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन, नेम ऑफ द प्लेसेस वे द फर्म अदर जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, और डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइंड द फर्म. ठीक है, किस डेट पे पार्टनर ने फर्म ज्वाइन किया है, फिर पार्टनर्स का नेम और एड्रेस, और ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप. और ये जो एप्लीकेशन होती है ये इट शुड बी फिल्ड एंड साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स. Then we have to deposit a fee also with the registrar of the firm, and the registrar after approval will make an entry in the register of the firm. Approval के बाद ही जो registrar होता है वो firms के register में उसकी entry करता है, और then they will issue a certificate of registration. ठीक है, and then your firm will be registered if the registrar of the firm will provide you the will issue the certificate of registration. तो certificate of registration जब issue हो जाएगा उसके बाद आप अपने फर्म को स्टार्ट कर सकते हैं और आपका फर्म रजिस्टर्ड हो जाता है. So this was a procedure for getting the firm registered. कि first of all you have to submit the application to the registrar after filling all the details, and this application should be signed by all the partners. Then you have to deposit a required fees also, and then the registrar will approve all the documents, and after approving then they will issue a certificate of registration. And as I have already told you कि if your firm is not registered, then what about the consequences? Consequences क्या होंगे कि उस केस में अगर आप किसी भी अदर फर्म के अगेंस्ट या किसी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट या किसी भी अदर पार्टनर के अगेंस्ट किसी भी तरीके का केस सूट करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट, बिकॉज योर फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड.
So it is advisable that your firm should be registered. The next one is joint stock company. Now next form of business ownership is joint stock company that we will discuss here. And then we will discuss the features of joint stock company and merits, and then limitations. So these are the topics that we will discuss here one by one. So first of all, we should know what is a joint stock company. Now, joint stock company, or you can say company, is an association of persons which is formed for carrying out business activities. तो कंपनी क्या है, एक पर्सन्स का एसोसिएशन है जो बिजनेस एक्टिविटीज कैरी आउट करने के लिए फॉर्म किया जाता है, एंड इट हैज अ लीगल आइडेंटिटी और यू कैन से लीगल स्टेटस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. तो कंपनी का एक अपना लीगल इमेज स्टेटस होता है और मेंबर्स का अलग होता है. ठीक है. कंपनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच एज यू कैन से कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका अपना एक सेपरेट स्टेटस या सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर. ठीक है. एंड परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. ठीक है. तो कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक सेपरेट लीगल स्टेटस या लीगल आइडेंटिटी है और एक परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब इट विल कंटिन्यू till now this will discuss each and every features, and it has a common seal also. And the company is a form of organization. जो कंपनी है एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है. ना फीचर्स क्या क्या हैं जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़े थे अभी प्रीवियस स्लाइड में, कि कंपनी क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. Now these features we will discuss here in detail. The definition of joint stock company highlights the following features. Artificial person, कंपनी क्या है, एक तरीके का क्रिएशन ऑफ लॉ है और इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. और नेचुरल पर्सन कंपनी के पास कैन ओन अ प्रॉपर्टी. Like natural person, company can own property, incur debts, borrow money, enter into contracts, sue means it can sue a case against any other party, and it can also be sued like an natural person. Okay, but it cannot run and talk and breathe, so therefore it is called artificial person. तो like a natural person, company की भी एक अपनी identity है, ये but artificial person है क्योंकि it cannot breathe like a natural person. The next one is separate legal entity. ठीक है. इनकॉर्पोरेशन की डेट से या फॉर्मेशन की डेट से कंपनी को अपनी एक आइडेंटिटी मिल जाती है जिसमें मेंबर्स की आइडेंटिटी अलग डिस्टिंक्ट होती है और कंपनी की अलग होती है. और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर. और जो कंपनी की एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं वो सेपरेट होगी और ओनर्स की अलग होगी. सो द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस एंड ओनर्स टू बी वन. तो लॉ के अकॉर्डिंग, कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग ओनर और बिजनेस की आइडेंटिटी सेम नहीं है, दोनों की सेपरेट होती है. थर्ड वन इज फॉर्मेशन. कंपनी का फॉर्मेशन इज बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव भी है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट सेवरल डॉक्यूमेंट्स जो आपको प्रिपेयर करने होंगे जो और लीगल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. और जो कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन या फॉर्मेशन होता है वो कंपलसरी होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, और या फिर उसके पहले जो भी कंपनी से रिलेटेड लॉज आए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, इनकॉर्पोरेशन जरूरी होता है. सच कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956 और एनी कंपनी लॉ शैल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ कंपनीज. कोई भी कंपनी चाहे वो कंपनीज एक्ट 1956 में फॉर्म हुई हो या कोई अदर लॉ हो तो उसको लिस्ट ऑफ कंपनीज में इंक्लूड होना होता है. ठीक है. तो इसीलिए फॉर्मेशन के लिए काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं और फुलफिल करने होते हैं, प्रिपेयर करने होते हैं. इसलिए ये बहुत ही फॉर्मेशन जो होता है कंपनी का वो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव भी होता है. परपेचुअल सक्सेशन मीन्स कंपनी बीइंग अ क्रिएशन ऑफ लॉ कैन बी ब्रॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ. ठीक है. परपेचुअल सक्सेशन मतलब जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो लॉ के अकॉर्डिंग ही क्रिएट किया जाता है. इसलिए अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए भी इट कैन बी एंड ओनली बाय द लॉ. ठीक है. सो इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट व्हेन अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप इज कंप्लीटेड. तो आप तभी क्लोज कर सकते हो जब आप उसकी वाइंडिंग अप प्रोसेस को फुलफिल कर लेंगे, तभी आप जो है कंपनी को क्लोज कर सकते हैं. सो मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो. ठीक है. एनी न्यू मेंबर दे कैन कम एंड दे कैन गो ऑल्सो. ठीक है. बट द कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. तो कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो कंटिन्यू होता रहेगा, चाहे कोई मेंबर आता है या जाता है, उससे उसका कोई भी रिलेशन नहीं है. ठीक है. सो कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और इट विल ओनली कम टू एंड
जब हम कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसेस फुलफिल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही वो लॉ के स्पेसिफाई होने के बाद ही हम उसको क्लोज कर सकते हैं. So it is a perpetual succession, means company will continue to exist whether the member will come or go. ठीक है, after binding up only you can cease to exist. Now next one is controlling. जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का, कंट्रोलिंग होती है, वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो अपॉइंटमेंट होता है वो बेसिकली जितने भी टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरे कंपनी का मैनेजमेंट और कंट्रोलिंग करते हैं. लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी जो होती है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है जितना भी उनका कैपिटल कंट्रीब्यूट हुआ है कंपनी में. तो जिस भी मेंबर ने जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उनकी लाइबिलिटी बस उतने अमाउंट के लिए ही लाइबल होते हैं वो. तो क्रेडिटर्स कैन यूज ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स. तो जहां से भी बोरोइंग हुई है, जिन भी क्रेडिटर्स ने पैसा दिया है कंपनी को, तो वो सिर्फ कंपनी के एसेट्स को ही यूज कर सकते हैं उनके जो क्लेम्स होते हैं उसको सेटल करने के लिए. सिंस इट इज द कंपनी एंड नॉट द मेंबर्स दैट ओन्स द डेट. क्योंकि ये कंपनी है जिसने डेप्ट लिया था, मेंबर्स ने नहीं लिया था, दोनों की आइडेंटिटी अलग है, इसलिए जो क्रेडिटर्स होते हैं वो सिर्फ कंपनी के एसेट्स को ही यूज कर सकते हैं अगर इफ इन केस कोई क्लेम किसी भी तरीके का सेटल नहीं हुआ है. क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड उतने ही अमाउंट के लिए होती है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है. फिर नेक्स्ट है कॉमन सील. कॉमन सील मीन्स कि कंपनी का मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील. ठीक है, और इफ अ कंपनी हैज अ कॉमन सील इट मस्ट बी अफिक्स्ड टू द डॉक्यूमेंट सच एज अग्रीमेंट्स ऑफ कंपनी. ठीक है, तो कंपनी के पास कॉमन सील हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. और अगर उसके पास कॉमन सील है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी के एग्रीमेंट से रिलेटेड उसमें वो सील जो है अफिक्स्ड होता है. सील मतलब एक तरीके का स्टैम्प होता है. सो इफ अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील और अ स्टैम्प देन द पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट शुड बी ऑथराइज्ड बाय बोर्ड्स रेजोल्यूशन. ठीक है, तो कंपनी में अगर कॉमन सील नहीं है तो जो डॉक्यूमेंट जो भी पर्सन साइन कर रहा है उसको वो डॉक्यूमेंट जो है ऑथराइज कराना पड़ता है, जो भी बोर्ड होता है, बोर्ड रेजोल्यूशन होते हैं. ठीक है, बोर्ड रेजोल्यूशन के जो मेंबर्स हैं उनसे वो डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कराना होता है अगर कोई भी किसी भी तरीके का कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है अगर वो उस पर सील ना हो, स्टैम्प ना हो. द नेक्स्ट वन इज रिस्क बेयरिंग. जो रिस्क होते हैं, द रिस्क ऑफ लॉसेस इन अ कंपनीज, वो सारे शेयर होल्डर्स उसको बॉर्न करते हैं जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के. अब मेरिट्स क्या क्या होते हैं कि यहाँ पे जो लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है उतने ही अमाउंट के लिए जितना उनका कंपनी में शेयर है या कैपिटल जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है. ठीक है, दे आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम. ठीक है, तो जितना भी उनका शेयर है कंपनी में अगर उसका कोई भी अमाउंट अनपे होता है तो उतने अमाउंट के लिए ही वो लाइबल है. ठीक है, ओनली द एसेट्स ऑफ द कंपनी कैन बी यूज टू सेटल द डेट्स. और जितना भी डेप्ट है कंपनी का उसके लिए सिर्फ कंपनी के एसेट्स ही यूज किए जाते हैं डेप्ट को सेटल करने के लिए. ठीक है, जो भी ओनर है या मेंबर है उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके का डेप्ट सेटल नहीं होता है. ठीक है, तो इस तरीके से जो रिस्क होता है इन्वेस्टर का वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी उनकी सिर्फ जितना भी उनका शेयर्स हैं उतने अमाउंट के लिए वो लाइबल है. सेकंड, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है. तो ओनरशिप का इजिली यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ईज ऑफ ट्रांसफर होता है ओनरशिप एड टू द एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी एज अ शेयर ऑफ द पब्लिक लिमिटेड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट. तो यहाँ पे ओनरशिप इजीली ट्रांसफर हो सकती है क्योंकि जो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो शेयर होता है उसको हम इजीली मार्केट में सोल्ड कर सकते हैं और उसको इजीली कैश में कन्वर्ट भी हो सकता है अगर कोई भी नीड अराइज करती है. ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट या ओनरशिप का इजिली ट्रांसफरेबिलिटी होता है क्योंकि कंपनी का शेयर जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनका शेयर जो है मार्केट में इजिली सेल हो सकता है. परपेचुअल एग्जिस्टेंस मींस यहाँ पे अगर कोई भी मेंबर या पार्टनर, कोई भी मेंबर की अगर डेथ होती है, रिटायरमेंट होता है या रिजाइन कर देता है या सॉल्वेंट होता है तो उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि कंपनी का अपना सेपरेट आइडेंटिटी है मेंबर से. तो यहाँ पे कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट. स्कोप फॉर एक्सपेंशन. ठीक है, बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के कंपैरिजन में कंपनी का जो एक्सपेंशन या स्कोप होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं. कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक क्योंकि कंपनी के शेयर्स मार्केट में भी सेल किए जाते हैं तो कैपिटल हम पब्लिक से भी कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं. ठीक है, और बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लिया जा सकता है. मैनेजमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज टू स्पेशलिस्ट. तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी एक्सपर्ट से रिलेटेड होता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है मैनेज अफोर्ड कर सकती है कि वो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं या स्पेशलिस्ट हैं उनको ज़्यादा सैलरी पे करें. तो यहाँ पे डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं जिनके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस होते हैं. लिमिटेशंस क्या होती हैं कि जो ड्रॉबैक्स हैं कंपनी के वो क्या है कि यहाँ पे बहुत ही लीगल फॉर्मेलिटीज हमें फुलफिल करना होता है अगर हमें कंपनी का फॉर्मेशन करना है. डिफरेंट प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं.
जो भी लॉ है, कंपनी लॉ है। फिर सिक्रेसी की भी काफ़ी लैक ऑफ सिक्रेसी होती है, क्योंकि कंपनीज को, जो पब्लिक कंपनी होती हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है रजिस्ट्रार ऑफिस को प्रोवाइड करनी होती है। तो इस तरीके से जो कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हैं उसमें लैक ऑफ सिक्रेसी भी होती है। ठीक है, सिक्रेसी मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। फिर इम्पर्सनल वर्क इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कंपनी का साइज लार्ज होता है, तो इससे क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं उनको पर्सनल कांटेक्ट जो मेंटेन करते हैं वो एम्प्लॉयज से, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, लीगल प्रोविजंस और कंपल्शंस बहुत होते हैं, और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा डिले होता है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, तो जिस वजह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा बहुत डिले होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट इन इंटरेस्ट। और जो डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, उसमें उनका जो इंटरेस्ट होता है उसमें डिफर भी कर सकता है, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होता है, क्योंकि सबके परसेप्शन अलग होता है। सो दीज वर द वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ द companies that we have discussed here. So once again I would like to conclude this whole topic, that today we have discussed about the various type of partnership, and in this we have discussed ki what were the various type of partnership at will means it will continue to exist at the will of the partners. Particular means it will it is formed for the accomplishment of particular project, and so when that project will be completed, then the partnership will dissolve. The next one was general partnership. The next one was limited partnership. Then we have discussed about the partnership deed and the various aspects of deed. That was name of the firm and registration. Then we have discussed about the consequences of the registration of firm, the consequences of non-registration. If any firm does not get registered, then what are the consequences? Then the consequences means the partner cannot claim against any third party or any other partner or any other firm. Now then we have discussed about the procedure, how the firm can get registered with the register of firms, and then we have discussed about the joint stock company. And here we have discussed what were the features, that company is an artificial person and it has a separate legal identity also, and it can be formed, but there are various rules and regulations. And perpetual succession means a company is not affected by the death of any partner. Then control and liability, it has a common seal also, and the risk is borne by all the shareholders. Then we have discussed about the liabilities. The liability of the member is limited only till the to the amount of the shares in the company. जितना भी कंपनी में उनका शेयर्स है उतने अमाउंट के लिए वो लाइबल होंगे. And then they can easily transfer their interest, means company can sell their shares in the market and it can be easily converted into cash also. ठीक है, so ownership transfer can be easily done. And then perpetual existence, and then scope for expansion and professional management. And the drawbacks of company is that there is a lot of legal formalities, so there is complexity in formation, lack of secrecy also, and work environment is also impersonal, and delay in decision making, and there are a number of legal provisions and compulsions, and there is conflict of interest also. So these were the topics that we have discussed, and in the next slides we will discuss various other topics also of the forms of company, like what are the rules and regulations of companies. Okay. So these were the topic of forms of various ownership, and in the next presentation we will discussing about the legal formalities which are being framed according to Companies Act 2013. So these were the topics of company. Thank you. So thank you students for the today's class.